Okay, so one of the explain only setup. What is fake breakout? What is Rajesh. okay? You've joined back in. Yeah, is the voice okay now? Yes, it is absolutely okay. All right, thank you. Yeah, thank you all. Acha, just a moment. Okay. One moment, Titiksha. So this is a request to everyone कि अब जब हम होमवर्क सॉल्व कर रहे हैं, so make sure that you focus on the homework rather than asking questions out of the homework. ठीक है? अगर टाइम परमिट करता है, we will keep 5 to 10 or maybe 15 minutes of time कि आपके queries in the end हम आंसर करें. ओके, तो जब होमवर्क सॉल्व कर रहे हैं तो होमवर्क पे ध्यान देना प्लीज. यस दीक्षा, गो अहेड. Yeah, thank you, Rajesh. Right. So, कल जैसे ही हम लोग आज भी कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे फ्रॉम द लिस्ट दैट वी हैव गिवन यू. So for understanding all the Papa concepts all together, or at least most of the Papa concepts in a single example, I have picked one example to solve, which is this 17 number crude oil. Okay, the date is 23rd October 2018. Your screen isn't shared yet. Okay, I'm sorry. Yeah. Okay. So the 17, yeah, the screen is visible now, right? Yes, Satiksha. Okay. So the 17 number example, crude oil, the date is 23rd October 2018. So before we start with the example, I would request all of you to sit with the decision sheet that you have with you, which has all the setups. This decision sheet. This decision sheet that we shared during the Papa seminar. So sit with this and this sheet that you have, the paper. So while I solve the example here, you can also solve it on your end, and then you can refer it later. And also, before starting the examples, I would like to mention that the dates given in this list, so the format of the date is MMDDYYY. So the first is month, second is day, and third is year. Okay, so we'll start with the 17th example, crude oil. It is on 23rd October 2018, and my wave is daily, and my tide is weekly. So yeah, I'll go to the crude oil chart. Okay, so when we see this sheet, my date is 23rd October 2018. The script is crude. Let me zoom on to this. Yeah, my script is crude. So my first column that I have to fill in is Astha Papa story decision. So in the Papa seminar, we all learnt about building a story. Is my voice still cracking? Yes, just a bit, but I think you are pretty much audible. But yes, it is cracking a bit in between. Okay. I'll just stop my share. Give me 2 minutes. Okay. Okay. In the meantime, what I'll do is I'll try to cover few of the queries that were asked.
वन ऑफ द क्वेरी वाज कि ये बॉलिंजर बैंड क्या है वो एक्सप्लेन करने, और व्हाट इज अ फेक ब्रेकआउट वो भी एक्सप्लेन करने. सो लेट मी फर्स्ट ब्रिंग अप अ चार्ट एंड देन आई विल शेयर माय स्क्रीन and I'll try to answer that query. So give me one moment, please. Rajesh, is the voice okay now? Yeah, it is okay. I mean, it is still understandable. We can absolutely hear the words. It's just that at times it cracks. It's not that it is taking off any words. You can absolutely continue. ठीक है. So you want to take the fake breakout example, or should I begin? No, I think you should begin. It is important we cover some examples. Okay, sure. Right. So the first point we saw was Astha Papa story decision, which clearly tells, and we also studied it in the Papa seminar since the first hour of first day, that we should start, we should learn to build a story whenever we see any stock or any commodity or currency. So when we come to the crude oil story, and now if you go to your book, your Papa book, then on page number 46, under view building, it tells you to follow the trend, right? So let me, okay, so everybody, can you please stop your videos? It's disturbing. Yeah. Okay. So my date was 23rd October 2018, right? So I'm putting this date here. This was my date. I'm marking a vertical line over here. Yeah. So this was the date where the example we are supposed to solve. Okay. Now when we say that we have to build a story, so for that we need to start with the highest time frame available. And in investing.com, that is monthly, which is 1 month. So here every candle that has been printed, that has been printed over a duration of 1 month. Okay, and we are somewhere here. Yeah, we are here. So when we start building story right from the birth of crude oil, or rather, let's just say if we start building a story from here, then at this point we can see that this was a low. So I'll mark a horizontal line here. Yeah, this was a low. Then this, then the trend went up and it made a high. So this was a high. Right. So similarly, when we trace the price, so it has made a low here, it has gone up, made a high, then again came down and made a higher low. This low is higher compared to the previous low. So this is a higher low. Then it again went up to make a higher high compared to the previous high. It again retraced down, and over here it made a higher low compared to this low. So if we see the price, or rather trace the price in this direction, then it has been making higher highs and higher, yeah, it has been making higher highs and higher lows till this point. Okay. Now what happened after this point? After this point, there was a steep fall. And this particular low, which was the recent low, was broken down by the price here. Okay. So when the price made a low over here, then this low was lower than this low. I will just mark it for you. So this was my one low. Okay. And then my next low was this. Right. So my price has made a lower low.
So this basically tells me that the Dow theory, or the theory that was telling me that the trend is an uptrend, is probably changing now, because here it made a low for the first time, or rather a lower low for the first time. Then after this, when the price again started going up, over here it made a high, which was again lower than this high. Okay, so let me mark this high, uh, let's say pink color, and this high, right? So this high was lower than this high. तो अभी अगर हम कॉन्टेक्स्ट देखेंगे तो द प्राइस हैज मेड अ लोअर हाई, yeah, price has made a lower high and price has made a lower low, right? So this basically says that the trend is trying to change and go into a downtrend. Now when we again see ahead, the price broke this high and tried to go up, okay? But even at this point, it has not crossed the previous high, which is the which is this high. And price started falling again from this point. So let me delete this. Yeah. And let's check this high, which is lower than this high. Okay. Then again, it made a low. So, okay. So now if we consider just this, only this portion, तो फिर ट्रेंड अपना जो है उसने एक लो किया है, फिर एक हाई किया, फिर जो ये लो किया यहाँ पर, so this low was higher than this low, okay? फिर वापस यहाँ पर एक हाई किया और ये हाई पहले वाले हाई से हायर है, तो यहाँ तक ट्रेंड वाज एन अप ट्रेंड. फिर वापस उसने एक लो किया. नाउ दिस लो इज आल्सो हायर देन दिस लो, ओके? सिमिलरली इफ वी कंटिन्यू द चार्ट, तो अभी प्राइस क्या कर रही है? सो प्राइस इज मेकिंग लोअर हाइज एंड हायर लोज. तो बेसिकली यहाँ पर और ये पूरे पोर्शन में अगर मैं ट्रेंड लाइन मार्क, अगर मैं हाइज और लोज को ज्वाइन करने की कोशिश करती हूँ, तो ये मैंने हाइज ज्वाइन किए और यहाँ पर आई एम ज्वाइनिंग द लोज, ओके? सो व्हाट इज दिस ट्रेंड कॉल्ड? Sideways, right? Okay, would anybody like to volunteer to solve this example along with me? Rajesh, if you could unmute anyone. Yeah, I see Ketan Gada's hand raised. I'm going to unmute him. Sure. Okay, Ketan, you're unmuted. Yes, ma'am. मैम ये फ्लैग जैसा पैटर्न बना हुआ है साइडवेज में. ये फ्लैग जैसा बना हुआ है. या मैम, फ्लैग एंड पोल. बिल्कुल. तो हम इसे साइडवेज पैटर्न भी कहते हैं. यस मैम. ठीक है, तो अभी जब ये साइडवेज पैटर्न के मैंने हाइज और लोज मार्क किए, हाँ. तो अब इस कैंडल में क्या हुआ है? लो को तोड़ा है उसने, नीचे के लोज को तोड़ा है, बराबर. हाँ, तो नीचे के लोज को इस लाइन ने तोड़ा है, मतलब दिस वाज अ ब्रेकडाउन ऑफ अ फ्लैग. परफेक्ट. फिर ये जो प्राइस नीचे गई है, हाँ, तो ये यहाँ तक गई और यहाँ पर एक लो बनाया उसने. राइट मैम. आपका ये जो लो है, नाउ दिस इज एट सेम लेवल एज दिस लो, राइट? राइट. सो इट इज मेकिंग इक्वल लो एट दिस पॉइंट. इट मींस डबल बॉटम. डबल बॉटम कह सकते हैं जी, बिल्कुल. ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं क्या हुआ. ओके, सो द डबल बॉटम किया, पर इस कैंडल ने कंफर्म किया कि प्राइस को नीचे जाना है. सो द प्राइस हैज ब्रोकन दिस लो एज वेल. राइट मैम. बराबर. तो जो प्रीवियस सपोर्ट था, हाँ, प्रीवियस सपोर्ट था, वो भी ब्रेक हुआ है यहाँ पर. तो अगर हम आगे देखें, ओके, सो अगेन it made one more low and the price is going up. So now if we see this low, then this is lower than the previous low. Right ma'am. Okay. Right. फिर वापस price started moving up. Yeah. And now this is where we are.
ठीक है, तो अभी तो मैं मैम यहाँ से यहाँ, पैटर्न है, ये मॉर्निंग स्टार बोल सकते हैं ना, ये जो पैटर्न ये है? मॉर्निंग, नहीं मैम, नीचे ये जहाँ से ये अप गया हुआ है, नहीं जहाँ से नीचे से बॉटम से, यस यहाँ मैम, पर, ये जो है ना, हाँ ये जी हम इसको मॉर्निंग स्टार बोल सकते हैं। बोल सकते हैं मैम। जी ओके मैम। ओके, सो नाउ इफ आई कंसिडर दिस ट्रेंड, तो यहाँ पर क्या कर रहा है, ये एक लो था, फिर एक हाई किया, फिर हाँ, वापस एक लो किया जो कि पहले वाले लो से हायर है, लोअर हाई, लोअर हाई, बराबर। राइट, फिर एक और हाई किया जो राइट, पहले हाई से हायर है, हायर हाई, फिर से एक लो किया जो कि पहले वाले लो से हायर है, तो इसे लोअर हाई, हायर लो कहेंगे, हायर लो, ठीक है। और राइट, प्राइस ऊपर गई है। राइट मैम। अभी प्राइस जब ऊपर गई, तब ये पॉइंट पे उसने एक बेरिश हरामी बनाया, हाँ, ठीक है। सपोर्ट के तो ऊपर, अभी बिल्कुल, तो अभी मैं ये जो कैंडल है, दिस इज योर मदर कैंडल एंड दिस इज द बेबी ऑफ दैट बेबी, मदर कैंडल, बराबर। तो अभी बेरिश हम ये हरामी, मदर कैंडल के बराबर बेरिश हरामी, अभी हम इस मदर कैंडल का ओपन और क्लोज ये मार्क करते हैं। ओके, तो ओपन को मैं ग्रीन कलर देती हूँ और क्लोज को रेड। राइट मैम, या सो दिस वाज योर ओपन एंड दिस वाज योर क्लोज, क्लोज, आई एम सॉरी, गलत है। ग्रीन कैंडल है ना, तो नीचे ओपन हुई है और ऊपर क्लोज हुई है, रेड ऊपर आना चाहिए, करेक्ट। हाँ, तो ये मेरा ओपन है और ये मेरा क्लोज है। वैसे ही अगर मैं इस बेबी कैंडल का भी ओपन और क्लोज मार्क करने जाती हूँ, तो ये मेरा ओपन हुआ है ऊपर, क्लोज हुआ है नीचे, राइट, जी। तो ओपन को ग्रीन कलर देंगे और क्लोज को रेड, रेड। राइट, तो अगर मैं ये दो कैंडल्स को कंबाइन करूं अभी, अच्छा इससे इन्वर्टेड हैमर बनेगा मैम, बराबर, क्योंकि मेरा ये ओपन यहाँ पर हुआ है और सेकंड कैंडल क्लोज यहाँ पर हुई है। तो अगर मैं इसको बॉडी बोलूंगी राइट, और ये विक बोलूंगी, तो इसे हम इन्वर्टेड हैमर कह सकते हैं, हैंगिंग ठीक है। मैन, अभी हमें नहीं जी, हैंगिंग मैन मतलब हैमर होता है जो कि टॉप पे आता है, ओके, नहीं कंबाइन करेंगे तो हाँ नहीं, इसे कंबाइन करेंगे तो ये इन्वर्टेड हैमर कहलाएगा ना, इन्वर्टेड हैमर ही बनेगा ना मैम, ओके, बराबर। तो इन्वर्टेड हैमर आपके एक अप ट्रेंड के टॉप पे आया है, हाँ, ओके। राइट, नाउ दिस इज अ बेरिश साइन, बेरिश साइन, राइट, पर हम इस इन्वर्टेड हैमर के फॉलो अप के लिए रुकते हैं, बराबर। राइट मैम, तो अगर इस कैंडल के बाद मुझे एक कैंडल नीचे की तरफ मिलती है जो कि इसको फॉलो अप हो, तो हम कहेंगे कि ये इन्वर्टेड हैमर को फॉलो अप आया है एंड द ट्रेंड माइट चेंज एंड गो डाउन, ठीक है। राइट, राइट, सो we'll see the next candle, okay, so next candle was this, so this is not called a follow up, right? राइट, Okay, we'll see one more candle, yeah। तो यहाँ पर वो क्या कह रहा है कि इन्वर्टेड हैमर को ये दोनों भी कैंडल्स का फॉलो अप नहीं था, तो प्राइस नीचे की तरफ नहीं गई बल्कि ऊपर गई, ऊपर की तरफ गए, ओके। राइट, अभी अगर मैं अभी अगर मैं ये जो ग्रीन कैंडल का हमने ओपन और क्लोज मार्क किया था, उसे कंसिडर करेंगे, तो ये तीनों भी कैंडल्स उसके अंदर है, राइट मैम, मैं ये डिलीट कर देती हूँ, चाहिए तो हाँ, ये तीनों भी कैंडल्स इस कैंडल के अंदर है, ठीक है। अंदर ही है, तो फिलहाल अगर हम इसको लोअर टाइम फ्रेम पे देखेंगे ना, तो हमें ये साइडवेज फ्लैग जैसे दिखाई देगा, राइट मैम, हाँ। तो अभी we'll see what the next candle has done। तो अगर मैं एक और कैंडल आगे जाती हूँ जो कि हमारा एग्जाम्पल का कैंडल है, हाँ, तो ये कैंडल ने क्या किया, मेरा ये जितना भी साइडवेज एक्शन था ना, उसको तोड़ के नीचे क्लोज दे दिया, चारों कैंडल को इसने खा लिया मैडम, एंगल अप कर लिया, बराबर जी। तो ये जो ग्रीन मदर कैंडल हम कह रहे थे, इसके ओपन के भी नीचे इसने क्लोज किया है, राइट मैम,
यहाँ पर क्लोज किया है, ठीक है, तो हम Right. इसे वेपन कह सकते हैं। यस मैम। और अभी आपका क्या हुआ है, आपका ये जो साइडवेज एक्शन था और बेरिश हरामी था और ये हाँ। पूरा साइडवेज एक्शन, उसको नीचे के साइड पे ब्रेक किया गया है। राइट मैम। ओके, सो आपने व्यू बना लिया कि माय व्यू इज नाउ बेरिश, बराबर। राइट। हाँ, तो अभी आप जो पूछ रहे थे ना, ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल अभी हमने जितना भी देखा मैं वो रिपीट करती हूँ एक और बार। हाँ मैम। तो पहले हम देख रहे थे कि ये पूरा अप ट्रेंड था यहाँ तक, इसने यहाँ पे एक हाईएस्ट पॉइंट बनाया जो कि एक बेरिश एंगल्स भी बनाया हाई पॉइंट पे, और उसके बाद प्राइस गिरी है। जब प्राइस गिरी तब जो उसने लो बनाया वो पहले वाले लो से लोअर था, और ये जो हाई बनाया वो पहले वाले हाई से भी लोअर था। ओके, तो प्राइस ने बेसिकली एक लोअर हाई और एक लोअर लो बनाया, और बाद में ये जो साइड, ये जो भी एक्शन हुआ उस वहां पर उसने एक फ्लैग बनाया, मतलब योर प्राइस वाज साइडवेज। ओके, ये कैंडल ने वो साइडवेज रेंज को तोड़ दिया नीचे के तरफ, बराबर मैम। और तो फिर मैम हम एक इसमें नीचे, एंट्री कर सकते थे ना अगर उसने ब्रेक किया लोअर को। हाँ, आप तो अगर यहाँ पर हो हाँ, तो आप, इसने ब्रेक डाउन किया है तो उसके बाद एक हाँ, और जब कंफर्मेशन आता है तब आप एंट्री हाँ, ले सकते हो। ले सकता था ना। ओके मैम। राइट। जी बिल्कुल। ओके, हाँ, तो हमने क्या देखा कि इसने साइडवेज रेंज को ब्रेक किया और फिर प्राइस नीचे गई, बराबर। फिर उसने एक लो बनाया जो कि ये वाले लो से के सेम लेवल पे था, सो इक्वल लो बनाया उसने। ओके, फिर जब हम आगे जाते हैं वापस, तो द प्राइस वाज अगेन गोइंग इन अप ट्रेंड ये पोर्शन में, हायर हाई बनाते गया, लोअर हाई बनाते गया, हायर लो। बिल्कुल बिल्कुल। और ये पॉइंट पे हमने देखा कि ये जो पूरा साइडवेज एक्शन हुआ था उसे एक ही कैंडल ने ब्रेक करके नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया। राइट। ओके, राइट। अभी आप जो मुझे पूछ रहे थे कि ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट देखना है, मतलब क्या? हाँ, तो हमारे पापा बुक के अकॉर्डिंग पेज नंबर 46 पे जो दिया है कि फॉलो द ट्रेंड, तो हमने सबसे पहले तो ट्रेंड फॉलो किया, और एक स्टोरी बिल्ड किया क्रूड के बारे में। बरोबर। ये करने के बाद अभी आप जहां पर हो वो पॉइंट पे आपने एक क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन किया कि एक ही वेपन कैंडल ने पूरा साइडवेज एक्शन तोड़ दिया। ठीक है, अब ये दोनों को आपको कंबाइन करना है और ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट देखना है। अभी ये मतलब क्या है वो मैं बताती हूँ, मैं ये सारा इमेजेस हटा देती हूँ। ठीक है, अभी जब मैं सिर्फ प्राइस देखती हूँ, सबसे पहले तो हमें सिर्फ प्राइस देखने का हैबिट डेवलप करना है। राइट। तो जब मैं सिर्फ प्राइस देखती हूँ और यहाँ पे जब मैंने बोला कि मेरा ये साइडवेज एक्शन ब्रेक हो गया था, तो उसके बाद ये जो 3 कैंडल्स आए 1 2 3, ओके, सो द प्राइस वेंट अगेन इन दिस रेंज। इट मींस मैम दिस इज अ ब्लैक क्रो ना, जो सर ने सिखाया था। जी, तो ये जो 3 कैंडल्स है हम इसे 3 ब्लैक क्रोज या 3 रेड क्रोज बोल सकते हैं। राइट मैम, राइट। ओके, अभी 3 ब्लैक क्रोज या 3 रेड क्रोज का सेटअप, मतलब इसे फर्स्ट कैंडल देखा का या इसे ट्रेड कैसे किया जाता है। तो जो मिडिल कैंडल है उसका हम उसका हम ओपन और क्लोज मार्क करते हैं। ठीक है, ओके। फिर जब प्राइस वापस आपकी उसी रेंज में आती है, मिडिल क्रो के रेंज में जब आती है, और फिर आपको एक अच्छा सा रिवर्सल मिलता है विथ योर वेपन, राइट, तब आप इसको शॉर्ट कर सकते हो। ठीक है, ठीक है। तो इस जो मैं आपको ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट कैसे देखते हैं वो बोल रही थी ना, तो आपका पेज पापा बुक पे पेज नंबर 47 पे लिखा हुआ है ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट 47 तो अभी जी, तो अभी ये पॉइंट पे मैं इसको 3 ब्लैक क्रोज नहीं बोलूंगी। क्यों? क्योंकि कैंडल तो प्रिंट हुआ है पर प्राइस वापस सेकंड क्रो के रेंज में आई नहीं है, बराबर। बराबर। यहाँ पर जब प्राइस वापस आती है उसी रेंज में,
तो मैं हाँ इसे 3 ब्लैक क्रोस बोल सकती हूँ। ओके ठीक है ओके, तो अभी ठीक मैंने है ट्रेंड देख लिया, मैंने मेरे हाँ वेपन मतलब जो डेट पे मैं एग्जांपल सॉल्व कर रही हूँ वहां हाँ पे क्या सिनेरियो है वो देख लिया, राइट और मैंने ये दोनों को कंबाइन करके कॉन्टेक्स्ट देख लिया कि यहाँ पे 3 ब्लैक क्रोस थे और मिडिल क्रो के बीच में मुझे एक रिवर्सल मिला। ओके मैम ओके 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 ओके, अब सो पता चला अभी मैंने कॉन्टेक्स्ट व्यू बनाया। ओके गुड, तो राइट अभी राइट मैंने व्यू बनाया कि माय व्यू इज टू शॉर्ट क्रूड शॉर्ट करो और टू सेल क्रूड। ठीक है, राइट so this was how I made my view on crude. On which time frame did we do this? We did it on monthly. मंथली तो आपको ये जो ट्रेंड चेक करना है, व्यू बनाना है, कॉन्टेक्स्ट चेक करना है, ये आप जितने हायर टाइम फ्रेम पे करोगे उतना बेहतर है। तो ओके मैम मंथली, वीकली, ये सारे इस पे आपको कॉन्टेक्स्ट या व्यू बिल्डिंग करना है। राइट मैम ठीक है, ओके। मतलब हाई टाइम फ्रेम अभी पे हायर टाइम फ्रेम पे बिल्कुल। अभी हमने मंथली देख लिया, अब हम वीकली पे आएंगे, एक टाइम फ्रेम नीचे। ठीक है तो जब मैं वीकली पर हूँ, एक सेकेंड, हमारा डेट क्या था डेली पे? 23 अक्टूबर 2018। 18 ये था मेरा। ओके, तो अभी मैं वीकली पर थी ना, आई सॉ मंथली, नाउ वील सी वीकली। एक सेकेंड, हाँ, तो वीकली पर यहाँ पर हूँ मैं। ओके, मैंने मंथली पे मेरा व्यू बिल्ड कर लिया कि मुझे क्रूड को शॉर्ट करना है। अभी राइट वीकली, क्योंकि मेरा टाइड है, वीकली इज योर टाइड राइट, तो टाइड पे हम लोग क्या चेक करते हैं? MACD राइट, तो यहाँ पर हम MACD चेक करेंगे। ओके, तो MACD आपका ये पॉइंट पर क्या कर रहा है? यहाँ पे डाउन टिक दे रहा है डाउन टिक दे रहा है डाउन टिक दे रहा है। आपका ये जो ब्लू लाइन है वो MACD लाइन है, और जो रेड लाइन है वो सिग्नल लाइन है, बराबर। तो यहाँ पर मुझे MACD सिग्नल लाइन के नीचे क्रॉस ओवर होता हुआ दिखा, और Right. उसका स्लोप भी डाउनवर्ड्स है। डाउनवर्ड है ठीक है, सो माय टाइड, हाँ, सो माय टाइड टेल्स मी सेल। सेल क्यों? क्योंकि मेरा क्रॉस ओवर नीचे की तरफ कर रहा है वो बिल्कुल MACD का स्लोप डाउनवर्ड्स है, और नेगेटिव क्रॉसओवर हो चुका है। नेगेटिव क्रॉस ओवर ठीक है, यस मैम ये आपको समझा बराबर? हाँ मैम जी, अभी हमारा टाइड देख के हो गया, अभी हम नीचे डेली पे आएंगे जो कि मेरा वेव है। yes. सो जब मैं वेव पे आती हूँ, स्टॉकेस्टिक यू चेक द स्टॉकेस्टिक हाँ, तभी मेरा ये पॉइंट था। ओके, ये भी मैं डिलीट कर देती हूँ। तो मुझे वेव पे देखना है RSI और स्टोकेस्टिक, बराबर। तो मैं RSI लगाऊंगी, स्टोकेस्टिक लगाऊंगी, और स्टोकेस्टिक का सेटिंग्स मुझे चेंज करके 1433 करना है। 1433 ठीक है, ओके ओके। तो अभी जो मेरा ये जिस दिन का कैंडल है विच इज माई 23 अक्टूबर, उस दिन पे अगर मैं स्टोकेस्टिक देखती हूँ और RSI, सो RSI मेरा क्या कर रहा है? इट इज गिविंग मी अ डाउनवर्ड स्लोप। मैडम या फिर इसका एक आपने किया 4060 है ना वो उसमें चेंज हाँ करना पड़ता 40-60 करना है, बराबर। तो ये 60 है, 40 ठीक है। तो मेरे RSI ने मुझे डाउन टिक दे दिया है, इसका स्लोप भी डाउनवर्ड्स है, राइट और ये बिलो 40 भी है।
सो जो मेरा MACD का डिसीजन था सेल, और जो हमने मंथली पे व्यू बिल्डिंग में बोला था सेल, तो उसके साथ मेरा RSI भी मुझे बता रहा है सेल। सेल, राइट। ठीक है, अभी यही इसी पॉइंट पे अगर मैं स्टोकेस्टिक देखती हूँ, ओके, सो स्टोकेस्टिक सर ने बताया था आपको कि इन अ वेरी स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड, हाँ, स्टोकेस्टिक कैन गिव प्रीमेच्योर बाय सिग्नल्स, बराबर। बराबर। तो यहाँ पर जो स्टोकेस्टिक ने बाय सिग्नल दिया है, हाँ, तो दिस यू हैव टू अवॉइड। व्हाई यू हैव टू अवॉइड? बिकॉज your price is in a strong downtrend. Okay. And in a strong downtrend, your stochastic may give you false buy signals. Similarly, in a very strong uptrend, your stochastic can give you false sell signals. Okay. Okay. So my overall perspective was bearish. तो अभी मैं जब डेली पे आके, ये डिलीट कर देती हूँ, डेली पे आके मैं पूरा चार्ट जूम आउट करके देखती हूँ, सो आई कैन सी अपट्रेंड। अगर मैं ये सारा लोज मार्क करती हूँ, ये लो मार्क किया, फिर ये दो लोज, दिस लो, दिस लो, तो ये जब मैं मार्क करती हूँ तब मुझे दिखता है कि ये जो मेरा एग्जाम्पल के दिन वाला कैंडल है, उसने वो सारे लोज को नीचे की तरफ ब्रेक डाउन किया है, राइट, ब्रेक डाउन किया था। तो अगर मैं मेरे डिसीजन शीट में जाती हूँ तो सबसे पहले तो मुझे क्लोज ऑफ द डे लिखना है, ओके, विच इज 66.43। राइट। अभी सिंस ये क्रूड है तो ये सारे प्राइसेस आपको डॉलर में दिए गए हैं। हाँ मैम। हाँ, तो आपको अगर इसको इंडियन में देखना है, हाँ, तो मैं एक दूसरे इस पे इंडियन चार्ट खोल के रखती हूँ। ठीक है, तो मेरा ये दिन था वो। तो अगर मैं इस पर क्लोज ऑफ द डे देखूंगी तो क्लोज ऑफ द डे इज 4887। 4818। ओके, 4887 यहाँ पे देखिए ऊपर, हाँ मैम, हाँ मैम, तो इट सेज 4887, बराबर। हाँ मैम। तो मैं इसमें 4887 डालती हूँ। हाँ, अभी मेरा आस्था पापा स्टोरी डिसीजन क्या बताया मुझे? सेल। ओके, यस मैम। ओके, सो नाउ माय नेक्स्ट इज आस्था पापा ट्रेड सेटअप। तो इसके लिए ये हमें कह रहे हैं कि रेफर टू पापा गाइडेंस शीट, जो कि आपको जो लैमिनेटेड शीट दिया था, ये वाला। हाँ, तो इसमें से कौन सा सेटअप है वो देखना है हमें। ओके, तो उसके लिए मैं वापस चार्ट लगाती हूँ, और हमने चार्ट पे देखा था कि दिस वाज अ ब्रेक डाउन। ये लाइन ने ब्रेक डाउन किया था ना सपोर्ट को। हाँ, ब्रेक डाउन किया था। सो दिस वाज अ ब्रेक डाउन। तो अभी हमारे डिसीजन शीट में ब्रेक डाउन पे कौन से सेटअप्स है? एक तो एक है फेक ब्रेक डाउन, दूसरा है जेन्युइन ब्रेक डाउन। ओके, तो अगर हम जेन्युइन ब्रेक डाउन देखते हैं तो ये मुझे पापा ऑब्जर्वेशन में क्या कहता है कि शेक आउट एट अ मेजर सपोर्ट लेवल बिफोर एक्चुअल ब्रेकडाउन कैंडल। ओके, एंड सपोर्टिव इंडिकेटर्स में इट टेल्स मी टू चेक उंगली सेटअप, राइट। सो जब मैं वापस चार्ट पे जाती हूँ, एंड नाउ व्हेन आई सी हियर, ये जब कैंडल ने ब्रेकडाउन किया था
तो हाँ उसके पहले ये जो दो कैंडल्स थे, हाँ सो डज दिस लुक लाइक अ शेकआउट टू यू? नहीं मैम, चेकआउट जैसा तो उसमें। अच्छा, तो अगर हम यहाँ पर थे तो ये हाँ प्राइस नीचे जा रही थी, ठीक है। हाँ हाँ जब नेक्स्ट कैंडल आई तो इस हाँ हाँ कैंडल ने हाँ 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 ओपन हाँ, यहाँ पे किया और क्लोज ऊपर किया। राइट। तो जब प्राइस नीचे जा रही थी उसको एक ऑपोजिट डायरेक्शन में प्राइस को लेके गई दिस कैंडल, लेके जाने का, ओके। हाँ राइट। सिमिलरली जो नेक्स्ट कैंडल भी आई वो हाँ, भी क्लोज हुई है इस कैंडल के ऊपर, ऊपर हुई है। ठीक है। ओके सो ओके प्राइस वांटेड टू गो डाउन हाँ, which it eventually did, but before this there was a shakeout. शेकआउट, यस मैम। आप प्रॉपर मैम समझा, शेकआउट का मतलब अभी समझ में आया मैम, अभी समझ में आया। समझा? राइट राइट मैम, राइट राइट Okay. राइट राइट राइट। So this we can consider as shakeout before breakdown. मीन्स वो कंटिन्यू नहीं आया, उसने थोड़े से दो कैंडल्स बनाए, थोड़े अप टिक टाइप, और बाद में फिर वो नीचे आया, तो उसने एकदम से नीचे नहीं बराबर आया। शेकआउट, राइट मैम, राइट राइट बराबर। राइट। ओके, ओके हाँ। मैम। अभी अगर मैं पापा डिसीजन शीट देखती हूँ, सो माय नेक्स्ट क्राइटेरिया इज टू चेक वॉल्यूम। वॉल्यूम, प्लीज एक्सप्लेन अगेन, प्लीज एक्सप्लेन अगेन। ओके, हाँ। तो अगर मैं यहाँ पर हूँ तो मैंने देखा कि अच्छा, केतन जी, आई एम एक्सप्लेनिंग दिस अगेन क्योंकि चैट बॉक्स पे कुछ लोग कह रहे थे कि उनको नहीं समझा है। हाँ So we'll just go मैम, through this once again, okay? हाँ मैम, ओके So मैम, my price was trying to come down over here, okay? हाँ बराबर। Till this candle, I can see that the price is coming down. ये एक रेड कैंडल था, उसके बाद जो दूसरा रेड कैंडल था वो भी पहले के कैंडल के नीचे क्लोज हुआ है, क्लोज हुआ। ठीक है। इसके बाद जो एक कैंडल आया हाँ, उसने एक नया लो नहीं बनाया, मतलब पहले कैंडल के प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे नहीं क्लोज किया, नहीं क्लोज किया, ओके। इट बराबर। अगेन ट्राई टू गो अप। अप, वैसे ही जो दूसरा भी कैंडल था हम्म, वो भी इस कैंडल के क्लोज के ऊपर ही क्लोज हुआ है, ऊपर क्लोज दिया, ओके। बराबर बराबर। तो जो प्राइस नीचे जा रही थी तो वो नीचे जाने के रास्ते में दो थोड़ा कैंडल्स shift ऐसी हुआ। आई, हाँ हाँ, दो कैंडल्स ऐसी आई जिन्होंने सारे लोगों, जो लोग भी शॉर्ट थे उनको हाँ, शेकआउट किया, मतलब Shake उनको out। ट्रेड से निकाल दिया। निकाल दिया, राइट। ट्रेड से क्यों निकाला? क्योंकि ये पॉइंट पे अगर मैंने शॉर्ट किया भी है तो भी जब मैं दूसरा कैंडल देखती हूँ तो मुझे ऐसे लगेगा कि अरे इसको डाउन साइड पे फॉलो अप नहीं आ रहा है, फॉलो अप नहीं आ रहा है, राइट। माय शॉर्ट्स, हम एग्जिट कर लेंगे, हम एग्जिट हो जाते हैं, राइट मैम, राइट। हाँ, तो इसी का मतलब है शेकआउट करना। चेकआउट करना, राइट। तो ये दो कैंडल्स ने जो शेकआउट किया उसके बाद जो ब्रेकडाउन हुआ है, हाँ, सो दिस वाज अ ब्रेकडाउन और इसके पहले शेकआउट, सो दिस वी कॉल एज शेकआउट बिफोर जेन्युइन ब्रेकडाउन। ब्रेक डाउन, राइट राइट मैम, राइट। ओके, आई होप लोगों को समझा होगा अभी, या मैम, राइट। राइट। तो अभी हम क्या देखेंगे? हाँ, वॉल्यूम देखेंगे। सो लेट्स चेक वॉल्यूम एट दिस पॉइंट। वॉल्यूम, अच्छा, क्रूड ऑयल में वॉल्यूम नहीं दिखेगा आपको, क्यों? क्योंकि ये इंटरनेशनल चार्ट है, ये चार्ट में ट्रेडिंग नहीं होती है, ओके। वॉल्यूम अगर आपको देखना है तो शायद इंडियन चार्ट में दिखेगा। लेट मी चेक। हाँ, अभी ऐसा क्यों हुआ केतन जी? क्योंकि ये जो इंटरनेशनल चार्ट है क्रूड का, तो ये चार्ट हम व्यू बिल्डिंग के लिए यूज करते हैं। ये चार्ट में ना एक्चुअल ट्रेडिंग नहीं होता है। ट्रेडिंग किस में होता है? क्रूड के फ्यूचर्स चार्ट में होता है, जो कि ये क्रूड ऑयल फ्यूचर्स, ठीक है। तो जैसे हम कोई भी स्टॉक जब देखते हैं, रिलायंस या एसबीआई देखते हैं, तो हम उनके इक्विटी में भी ट्रेड करते हैं, बराबर। अभी जैसे कि एक सेकंड में बता देती हूँ आपको। तो हम इक्विटी में भी ट्रेड करते हैं, तो इसीलिए उन स्टॉक्स को हमें नीचे वॉल्यूम दिखता है। क्यों? क्योंकि उसमें एक्चुअली ट्रेड्स हुआ है, ओके
पर जो क्रूड ऑयल है वो दैट इज नॉट अवेलेबल इन इक्विटी मार्केट, मतलब कैश मार्केट में वो अवेलेबल नहीं है, वो नहीं सिर्फ है, फ्यूचर्स और ऑप्शंस मार्केट में अवेलेबल है। ओके। इसलिए फ्यूचर्स मार्केट में ट्रेडिंग होता है तभी वॉल्यूम दिखता है, क्योंकि इसमें एक्चुअली ट्रेडिंग हुआ है करके, बराबर। पॉइंट। हाँ मैम। ओके, सो हम वॉल्यूम देख रहे थे, तो ये कैंडल का जो वॉल्यूम है हाँ, वो अबव एवरेज है। अब एवरेज है। तो मैं वॉल्यूम में लिखूंगी, अच्छा लेट्स फिल दिस आल्सो। ट्रेड सेटअप था मेरा जेन्युइन ब्रेकडाउन। जेन्युइन ब्रेकडाउन। वेट, आई हैव टू चेक स्पेलिंग ऑफ जेन्युइन, सॉरी, GE। ठीक है, जो भी है, जेन्युइन ब्रेकडाउन, and my volume was above average. हेलो। हेलो, हाँ मैम, अभी है इंटरनेट आपका। अच्छा अभी ठीक है ना? हाँ मैम। ओके, सो यहाँ पे मैंने पापा ट्रेड सेटअप में लिखा जेन्युइन ब्रेकडाउन, और मेरा जो वॉल्यूम था वो भी मेरा अबव एवरेज था, तो आई हैव रिटन अबव एवरेज, राइट मैम। ओके ग्रेट। माय नेक्स्ट पॉइंट इज Bollinger Bands, which is we studied this in पापा सेमिनार। यस। तो मैं इंडिकेटर्स में जाकर Bollinger Band या BB टाइप करती हूँ, तो द फर्स्ट इंडिकेटर दैट आई सी इज माय बैंड्स। या सो हम इंटरनेशनल चार्ट पे देख रहे थे ना, तो हम यहीं पे स्टडी करते हैं। ठीक है। बीबी, हाँ, तो Bollinger Bands का इधर क्या कंडीशन है, मैं प्राइस को छुपा देती हूँ। ये Bollinger Bands क्या हुए हैं यहाँ पर? एक्सपांड हुआ है मैम। एक्सपैंड मतलब चैलेंज हुए हैं। ओके, सो Bollinger Bands बैंड को चैलेंज कर रहे हैं। आपका ऊपर के तरफ भी एक्सपैंड हो रहा है और नीचे के तरफ भी एक्सपैंड हो रहा है। ओके, और here's my price, yeah, so my price is also along the band। अच्छा, तो ये चीज मुझे सबको बतानी है कि जब भी हम BKP या BKT देखते हैं, तो उसके साथ हमें ये भी देखना है कि प्राइस कहाँ पर है। ओके, अभी अगर सपोज मैं ये पोर्शन देखूंगी, इफ माय प्राइस इज नॉट विजिबल एंड आई जस्ट सी दिस पोर्शन, सो दिस लुक्स लाइक अ प्रसाद। इसे हम बापू का प्रसाद कह सकते हैं, पर मेरी प्राइस जो है वो ऊपर के बैंड पर है। ठीक है, अगर आपको बापू का प्रसाद बोलना है ना, तो प्राइस को भी बैंड के मीडियन के नीचे होना चाहिए। तितिक्षा, इट इज भगवान का प्रसाद एंड बापू की टपली। आई एम सॉरी, भगवान का प्रसाद। राइट, सो जब हम भगवान का प्रसाद बोलते हैं, so even the price has to be in the lower portion of the Bollinger Band, which is below the median of the band। ठीक है, वैसे ही हम जब किसकी टपली होती है, बापू की टपली ऊपर साइड में, अगर ऊपर की तरफ से वो नीचे अगर होता है तो करेक्ट। तो अगर हम टपली भी देख रहे हैं, जैसे ये पॉइंट पे ये टपली आई है, so the price also has to be above the median of the band। ठीक है, वैसे ही प्रसाद के लिए, जैसे कि यहाँ पर है, दिस इज अ प्रसाद, भगवान का प्रसाद, राइट, ये, तो इसके लिए मेरा प्राइस भी उस बैंड के साथ होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि माय प्राइस इज हियर और यहाँ पे मुझे भगवान का प्रसाद दिख रहा है, जो कि यहाँ पर था। हाँ, जो कि हम ये देख रहे थे, यहाँ पर भगवान का प्रसाद है, बट द प्राइस इज अप, so this we would not consider, right man। okay, I hope everybody is clear with this। जिस तरफ जो बैंड है मैडम, उसी तरफ से चेक करना है हमें। बिल्कुल। तो अगर हम भगवान का प्रसाद देख रहे हैं, तो जो प्राइस है वो बैंड के नीचे की तरफ में होना चाहिए।
परफेक्ट। और अगर हम बापू की टपली देखेंगे तो प्राइस को कहाँ होना चाहिए? पैंट के ऊपर की तरफ में होना चाहिए। परफेक्ट परफेक्ट। ठीक है, तो हमने बैंड्स देखा। सो माय बैंड्स आर चैलेंज्ड और एक्सपेंडेड। एक्सपेंडेड, ठीक है। ओके मैम। नेक्स्ट इज ADX और डायरेक्शनल मूविंग इंडेक्स। उंगली So सेटअप। again I go to the chart and I type DMI for my ADX and I select this. Okay. So this is my DMI. I will just change the colors of this. ADX को मैं black करती हूँ, ओके माइनस DI को रेड और प्लस DI को ग्रीन। ओके ओके ओके। हाँ, तो यहाँ पर जो ADX है, हाँ, इसका शेप कैसे है? उंगली सेटअप आ गया मैडम, उंगली के जैसे, बैंड उंगली। उंगली के जैसे है, बराबर। और मेरा जो नेगेटिव DI है वो ऊपर है या नीचे है? ऊपर की तरफ में है। ऊपर की तरफ। तो बेसिकली मेरी प्राइस नीचे चैलेंज कर रही है, मतलब लोअर बैंड को चैलेंज कर रही है, और मुझे ADX में उंगली मिल रहा है। राइट, मतलब मुझे उंगली सेटअप मिला ऑन द लोअर साइड। लोअर साइड में, राइट। तो हमने जो ये भी देखा जेन्युइन ब्रेकडाउन, तो इसमें सपोर्टिव इंडिकेटर्स में वो कह रहा है कि उंगली सेटअप होना चाहिए। उंगली सेटअप, ओके, जो कि हमें यहाँ पर दिखा, उंगली सेटअप दिखा। तो ये उंगली सेटअप का मतलब क्या होता है ना, यहाँ पे अगर आप ADX देखोगे तो ये नीचे आ रहा था, मतलब स्ट्रेंथ नीचे जा रही थी। बट ग्रेजुअली एज यू प्रोसीड, तो ये जो स्ट्रेंथ नीचे जा रहा था, इट स्टार्टेड गेटिंग फ्लैट एंड देन एट दिस पॉइंट इट स्ट्रेंथ स्टार्टेड इंक्रीजिंग। मतलब ही जो आपका ट्रेंड है जो कि नीचे की तरफ चैलेंज हुआ है, उसका स्ट्रेंथ बढ़ रहा है। बराबर। इसलिए हम इसलिए हम उंगली सेटअप को मोमेंटम का सेटअप हो गए, सेलर एग्रेसिव हो गए, इससे हमें पता चल जाता है ना मैम। बिल्कुल बिल्कुल। Does ADX only have to be between plus TI and minus TI, or it can be anywhere, Rohan? Generally, if you observe, it is in between the plus and minus TI, but that is not a criteria that we check. It can be anywhere. Yeah. तो हमने ये देखा, तो उंगली ADX tells me उंगली सेटअप, और मेरा ADX का वैल्यू था 22। लेट्स चेक अगेन। ADX का वैल्यू 22 था, तो यहाँ पर मैंने उंगली 22 लिख दिया। ओके ओके, नाउ नेक्स्ट इज EMAs ओनली इफ एप्लीकेबल। तो EMAs हम कौन से सिनेरियो में नहीं चेक करते हैं? EMAs मैम, जब नीचे की तरफ में अगर वो बाई किए रहेंगे और वो नीचे की तरफ अगर आएगा तो ना मैम। हाँ, सी EMAs हम डबल टॉप या डबल बॉटम या फिर मॉर्निंग या इवनिंग स्टार, ये दो केसेस में हम चेक नहीं करते EMAs। राइट, ओके, दिस इज नॉट अ डबल टॉप और a double bottom, neither is this a morning or evening star, so here we will check EMAs। तो EMAs में अगर मैं give me 2 minutes, I'll just change these parameters। किसी का वीडियो चालू है, इट इज ब्लॉकिंग माय स्क्रीन। हाँ ओके, ठीक है। तो मैंने EMAs देखे, हमने EMAs पर, मेरा स्क्रीन विजिबल नहीं है। स्क्रीन विजिबल नहीं है। स्क्रीन इज विजिबल केतन जी। नहीं, मुझे नहीं दिख रहा है। हाँ, तो आपके साइड से कोई इशू हो सकता है। हाँ, अभी विजिबल हुआ। ओके ओके हाँ ठीक है। तो जब हम EMAs कहते हैं तो हमारा जो भी डेट पे हम एग्जाम्पल कर रहे हैं,
हाँ तो उसके 3 पीरियड्स पहले, मतलब 3 कैंडल पहले जाके हम ईएमएस चेक करेंगे। 3 कैंडल तो दिस इज द एग्जाम। हाँ, एग्जांपल। ये हमारे एसएमएम की शीट में है। इफ यू वांट आई कैन हाँ शो मैम, यू दैट। एसएमएम में, राइट मैम। हाँ, तो यहाँ पर मेरा ईएमएस क्या बोलता है, इग्नोर इफ मॉर्निंग और इवनिंग स्टार, इग्नोर इफ डबल टॉप और डबल बॉटम। डबल बॉटम। और ये क्या कहता है, 5, हम सेल साइड में है ना, तो 5 ईएमए नेगेटिव क्रॉसओवर विद 13 और 26 यस, इन इन लास्ट 3 पीरियड्स और कैंडल्स। ओके, तो ये मैं कहाँ गया, हाँ, तो ये मैं 3 कैंडल पीछे जाऊंगी, मतलब 1 2 3। तो ये पॉइंट पे मैं प्राइस हाइड कर देती हूँ और बैंड भी। हाँ, 1 सेकेंड, 1 2 3 मतलब ये कैंडल। हाँ मैम। तो ये कैंडल पे मेरे 5 ईएमए ने 26 ईएमए को नेगेटिवली क्रॉस किया। हाँ, और इस पॉइंट पे उसने 5 और 13 को नेगेटिव क्रॉस किया था। राइट। ठीक है, तो मतलब हमारे ईएमएस भी अगर हम कहेंगे तो इवन द ईएमएस आर इन नेगेटिव क्रॉसओवर स्टेट। नेगेटिव क्रॉसओवर, राइट मैम। राइट, सो मैं यहाँ पे लिख दूंगी नेगेटिव क्रॉसओवर। नेगेटिव क्रॉसओवर। व्हाट हैपेंड? डाइवर्जेंसेस हम कब देखते हैं? डाइवर्जेंसेस मैम, आपने एसएमएम होमवर्क किया है? हाँ मैम। हाँ, तो उसमें हम डाइवर्जेंसेस कब कब देखते हैं? मैम जब हम डाउन ट्रेंड में रहते तब तो मुझे लगता है जरूरत नहीं होती, मुझे लगता है, आई थिंक सो। अच्छा, जो डाइवर्जेंसेस है ना, वो हम हमेशा डबल टॉप या डबल बॉटम में देखते हैं। मतलब टॉप्स या बॉटम्स पे देखते हैं, कंटिन्यूएशन में नहीं देखते हैं, राइट मैम। नहीं देखते, बराबर। तो ये हमारा कंटिन्यूएशन है, राइट मैम। तो हम यहाँ पे डाइवर्जेंसेस देखेंगे क्या? नहीं मैम, नो। नहीं, तो यहाँ पे मैं लिखूंगी नॉट एप्लीकेबल। ओके, आस्था डबल स्क्रीन मेथड मतलब क्या था मेरा, एमएससीडी और स्टोकेस्टिक वाला। सो आस्था डबल स्क्रीन मेथड है ना, स्टोकेस्टिक पॉजिटिव था, बट व्हाट अबाउट माय आरएसआई? आरएसआई नेगेटिव था। हाँ, तो मैं डबल स्क्रीन सिस्टम में सेल लिख रही हूँ, राइट मैम। ओके, या नाउ आई हैव टू टेक आउट टारगेट। तो यहाँ पर अगर मैं पूरा चार्ट देखती हूँ, सो माय मेजर सपोर्ट, मतलब अगर प्राइस यहाँ से नीचे जाता है, सो माय फर्स्ट सपोर्ट इज दिस पॉइंट यहाँ पर। केतन जी, यू स्टिल देयर? हाँ मैम, हाँ मैम। हाँ, तो मेरा फर्स्ट सपोर्ट ये पॉइंट हो गया, तो मैं इसको मार्क कर रही हूँ। देन माय नेक्स्ट सपोर्ट इज दिस पॉइंट, एंड देन ओवर 3 टारगेट्स मिले, 1 2 एंड 3। ठीक है, मैं यहाँ पर चाहिए तो T1 T2 and T3. Okay, so these are my 3 targets. Isko, yes, I'll just plot these targets on the Indian chart so that we can enter the values. हाँ, तो ये मेरा सबसे पहला जो टारगेट है वो है
4567. तो मैं टारगेट्स में T1 is 4567. Okay. Then my T2 is 4287. So 4287. And then my T3 is 4019. So 4019. ये मुझे मेरे 3 टारगेट्स मिल गए. राइट मैम. अब मेरा स्टॉप लॉस क्या होगा? तो जब मैं ये ट्रेंड लाइन, जो मैंने सपोर्ट ट्रेंड लाइन मार्क किया था ना, हाँ, एक सेकेंड, ये कैंडल का जो हाई रहेगा वो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा ना मैम? नहीं, ये कैंडल काफी साइज में बड़ा है, राइट? मीडियन पकड़ेंगे इसका. सो इस कैंडल का मीडियन हम स्टॉप लॉस ले सकते हैं. ओके. तो इसको मैं रेड मार्क कर देती हूँ. सो दिस विल बी माय स्टॉप लॉस. तो मेरे कैंडल का मीडियन क्या है? इफ दिस इज माय कैंडल, सो या माय मीडियन इज 5018. ओके. तो मेरा स्टॉप लॉस हो गया 5018. ओके. So what is my reward? My first reward is my minimum target, which is my T1 minus my entry price. So this is equal to T1 जो हमारा था 4567 minus my entry. एंट्री हमारी थी 4887 क्लोजिंग ना. एक मिनट. Is equal to my minimum target. No, I'm sorry. We are bear here, right? For bears, my reward is entry minus my target. So my entry was 4887 minus target 1 क्या था? 4567. हाँ. So my minimum target is 320 points. राइट. और मिनिमम रिवॉर्ड इज 320 पॉइंट्स. और मैक्सिमम रिवॉर्ड जो है, तो उसके लिए अच्छा मिनिमम रिवॉर्ड में हम T2 का भी कैलकुलेशंस कर लेते हैं. सो दैट विल बी माय सेकंड टारगेट एंट्री. एक सेकंड, मैं कैलकुलेटर ओपन करती हूँ. हाँ, मेरा एंट्री जो था जो कि 4887 था. सो 4887 minus 4287. 4267 ना मैम? 4287 सॉरी. ओके. 4287 yeah, minus 4287. Yes. So that is around 600. 600. तो मैं यहाँ पे 320 लिख के रखती हूँ. और दूसरा है 600. Just want to take Control Z. I'll just write this over here for time being. So second, and my maximum reward was my entry, which was 4887 minus my T3, which is 4019. So my maximum reward is 8688. 868. Okay. Right. हाँ. अभी मेरा रिस्क क्या होगा? जो भी मेरा स्टॉप लॉस है माइनस माय एंट्री. एंट्री पॉइंट. राइट. So this will be equal to my stop loss, which is this, minus my entry, which is this. So 131. 131. अभी मुझे रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो निकालना है. So my first reward to risk ratio will be 320 divided by
131. 320 divided by 131. Okay. So that's 1:1.2. Yes. Okay. 2.4 around. 2.4. हाँ, तो मैं यहाँ पे दूसरा RR कैलकुलेट करते हैं. So this will be equal to my reward, second reward, divided by my risk. So it is around 1:4.5. 4.5. Okay, और यहाँ पे मैं थर्ड RR कैलकुलेट करती हूँ, which is equal to my third reward, which is 868. 868 Yeah. minus my risk. 7%. नहीं मैम डिवाइड आएगा ना वो. Minus नहीं, divide by, sorry. Divide by So 1:6. 6.6. Okay. Yeah. हाँ, तो अभी ये सिचुएशन में आप दो चीजें कर सकते हो. बिकॉज योर रिस्क टू रिवॉर्ड इज नॉट फिटिंग इन 1:3, 1:2.4 है. तो आप ये ट्रेड, दो ऑप्शंस है. एक, आप ट्रेड मत लो. दूसरा ऑप्शन है यू वेट फॉर अ बेटर एंट्री. मतलब अगले दिन या उसके अगले दिन अगर आपको एक बेहतर एंट्री मिलती है विच इज क्लोजर टू योर स्टॉप लॉस, that will improve your risk to reward ratio. So you will check if it is giving you a better entry. Okay. So this is your second option. एक और ऑप्शन आपके पास ये है कि because your risk to reward is, I mean your second RR is 1:4, then you can take this trade with a very strict stop loss. मतलब कहाँ एंट्री लेना चाहिए फिर आपके हिसाब से? अगर इसके बाद में अगर मैं तो देखिए आपके पास अभी तीन ऑप्शन है. पहला ऑप्शन है ट्रेड मत करो. ओके. दूसरा ऑप्शन है आप आपका एंट्री जो है वो बेहतर करो. मतलब आपका ये जो स्टॉप लॉस है ना, ये रेड लाइन, इसके नजदीक अगर एंट्री मिलता है तो वो एंट्री लेना. राइट. ठीक है. तीसरा ऑप्शन है आप इसी कैंडल पे ट्रेड ले लो विथ योर फर्स्ट. ये RR है ना आपका फर्स्ट. हाँ. और आपका सेकंड RR इज दिस 4.5. सो आप यहाँ पे एंट्री लो, पर आपका जो स्टॉप लॉस आपने रखा है ना, ये जो स्टॉप लॉस, वो आप बहुत स्ट्रिक्ट रखो. मतलब as soon as the price reaches there you can exit. Right ma'am. So this is called keeping a very strict stop loss. Right. Explain risk again please. ओके. तो ये रिस्क का कॉलम अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है फॉर बेयर्स. हम यहाँ पे एक बेयर है, मतलब हम बेच रहे हैं. तो फॉर बेयर्स लिखा है कि योर रिस्क इज योर स्टॉप लॉस माइनस योर एंट्री. ठीक है. तो मैंने यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस क्या था? एंट्री मैम 4887 माइनस स्टॉप लॉस. नहीं, स्टॉप लॉस माइनस एंट्री, क्योंकि हम बेयर है ना. हाँ. तो मैंने रिस्क के यहाँ पे पहले मेरा स्टॉप लॉस लिया जो कि ये है माइनस 488 माइनस मेरा एंट्री जो कि ये है 488. ओके. तो ये करके मेरा रिस्क आया 131. आई होप जिसको भी डाउट था वो क्लियर हो गया. Can we take stop loss at breakdown point? Yes, you can. आप रख सकते हो स्टॉप लॉस ब्रेकडाउन पॉइंट पर भी, पर इतना छोटा स्टॉप लॉस जनरली हिट हो जाता है. तो इट इज बेटर कि जब ऐसा बड़ा तगड़ा वेपन होता है तब आप उसके मीडियन पे स्टॉप लॉस रखें. Tidiksha, this is Sandeep. Yeah, hi Sandeep. Yeah, good evening everyone. I hope everyone is liking the way Tidiksha is explaining. हमारे टाइम पे इतना ऐसा कोई नहीं था यार, इतना अच्छे से आराम से सिखाने के लिए. Why I am here? I am here to announce something. I hope everyone has started reading the book, understanding the concept, etc. As promised by sir in the in the seminar, we will be giving you a test to be solved on this coming weekend. Okay.
So the process will be, you will receive a URL, and you just have to go there, use your email ID that you have given us at the time of booking the seminar, and solve these questions. This will be multiple choice questions, and it will be time bound. You have to solve these questions in a limited time period. You can use your book. We will be giving you a test on SMM concept. So over next 1 or 2 days, you have to read the book again and appear for this exam. Once the exam is done, you cannot stop the exam in between. You have to solve it at once. And once the exam is over, you have to give the result snapshot to your monitor, respective monitor. Okay. Okay, couple of points. One is, we will get to know, see, this examination is just to test what all things that you have learned. It is very simple. And at the same time, if suppose something is wrong, you are not very clear with the concept, one, you will read the book again, and second, we will come to know where exactly your students are lagging. Yeah, so it is the evaluation purpose we are giving you a test. So this weekend, please keep some time for this examination so that you can submit it in time. So I wish you all the best. And yeah, it will be on SMM first. It will be on SMM first, and probably in the next week we'll give you Papa. Okay. Thank you very much, sir. Thank you. Yeah. Thank you. So yeah, over to you, Diksha. Okay. Thank you, Sandeep sir. By the way, this test is going to be mostly a open book test, but it is time bound. आपको एक लिमिटेड टाइम होगा जिसमें आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. So I would recommend करना है या फिर ओरली बोलना है? नहीं, आपको ऑनलाइन टेस्ट दिया जाएगा. आपको मल्टीपल चॉइस आंसर्स होंगे, तो आपको जो सही आंसर है उसके ऊपर टिक करना है. टिक. ओके मैम. टिक करना है जी. तो I would recommend that you all, since we have already told you when the test is going to be, so it is better that you all finish reading your book and be prepared for the test, because you will have very limited time to answer all the questions. Yes, ma'am. Pratiksha, are you there? You are on mute. Hello. Yeah. Right, sorry, I was speaking and I was on mute. Okay, so we'll quickly just go through all the concepts that we just saw. So we saw the crude example right from the monthly. तो सबसे पहले हमने monthly पे क्या किया? हमने monthly पे view build किया. Now I'm not showing anything on the chart. Just listen to what I'm saying and note down few important points. सबसे पहले we built a view on monthly. According to your Papa book on page number 46, they have given you that you have to, for view building, you have to follow the trend. So हमने trend follow किया and we saw that crude was in a downtrend initially. उसके बाद एक correction आया और उस correction के top पे हमने एक bearish हरामी देखा, यानी एक green candle जिसके अंदर एक red candle था. And then there was a sideways action. Let me go on monthly. Yeah, so we were here. And at this point, we saw that this was a bearish harami. And we marked the highs and lows of the mother candle, which is this candle. और फिर जब हमारे इस कैंडल, मतलब हमारे वेपन ने जब मदर कैंडल का पूरा बॉडी को तोड़ के नीचे क्लोज दिया,
सो वी वेंट बेरिश, मतलब हमारा व्यू बेरिश हो गया, यानी शॉर्टिंग का हो गया। ये हमने मंथली पे देखा। सो या वी सॉ द ट्रेंड, वी स्टडीड द कैंडल्स एट दैट पॉइंट। थर्ड थिंग वी डिड वाज वी सॉ द ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट। जो केतन जी पूछ रहे थे कि ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट मतलब क्या देखना है, तो ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट मतलब मैंने देखा कि मेरे यहाँ पे 3 ब्लैक क्रोस थे और सेकंड क्रो के मिडिल पे मुझे प्राइस वापस आया और प्राइस ने रिवर्सल दिया, तो इसलिए मेरा व्यू था ऑफ शॉर्टिंग। ओके, ये सब मैंने मंथली पे किया। अब मैं एक टाइम फ्रेम नीचे आई विच वाज माय वीकली। मेरा व्यू ऑलरेडी पापा स्टोरी के हिसाब से बेरिश था। मैंने वीकली पे आके एमएससीडी चेक किया। एमएससीडी वाज गिविंग मी अ डाउनवर्ड स्लोप और उसका नेगेटिव क्रॉसओवर हो चुका था सिग्नल लाइन के साथ। सो माय एमएससीडी वाज आल्सो टेलिंग मी सेल। उसके बाद मैं एक और टाइम फ्रेम नीचे आई जो कि मेरा डेली था। डेली पे मैंने स्टोकेस्टिक और आरएसआई देखा। आरएसआई हमारा 40 के नीचे था और उसका स्लोप भी नीचे था। और स्टोकेस्टिक सर ने आपको बताया है कि एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में स्टोकेस्टिक आपको फेक बाय सिग्नल्स या फॉल्स बाय सिग्नल्स दे सकता है। So combining all this, we came to a conclusion that we will be wearing the bear hat. After that, we saw what setup it was. हमने देखा कि जो हमारा कैंडल था जिस दिन पे हम एग्जाम्पल कर रहे थे, उस कैंडल ने पिछले काफी सारे लोज का ब्रेकडाउन किया था और इस ब्रेकडाउन के पहले एक शेकआउट किया था। सो देयर वाज अ शेकआउट बिफोर योर ब्रेकडाउन। ओके, ये हमने देखा। फिर हमने बॉलिंजर बैंड्स देखा। बॉलिंजर बैंड्स वर एक्सपैंडेड फ्रॉम बोथ साइड्स। बॉलिंजर बैंड्स के बाद हमने एडीएक्स देखा, तो एडीएक्स भी उंगली के शेप में था। सो वी हैड अ उंगली सेटअप ऑन द डाउन साइड। ऑल दीज टुगेदर, considering all these together, we wore a bear hat and we took entry. We had our stop loss at the median of the candle and we had 3 targets. तीनों टारगेट्स निकालने के बाद हमने रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियोज निकाला। सबसे पहला जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो था वो 1:2.4 था, जो कि 1:3 में फिट नहीं होता है। ऐसे सिचुएशंस में मैंने आपको बताया आप 3 चीजें कर सकते हो। सबसे पहली चीज, आप ट्रेड मत लो। दूसरी चीज, आप एक बेहतर एंट्री के लिए वेट करो। बेहतर एंट्री मतलब आपके स्टॉप लॉस के नजदीक अगर आपको एंट्री मिलती है तो वो एंट्री के लिए आप वेट करो। तीसरा ऑप्शन आपके पास ये था कि यू टेक द ट्रेड because your second risk to reward was 1:4, so you take the trade, but your stop loss you keep it very strict. Strict stop loss मतलब क्या कि price, as soon as your price reaches that stop loss level, you exit your trade. वापस उसके बाद अगर आपको एंट्री मिलता है तो आप वापस री एंटर कर सकते हो, but keep a strict stop loss. Why? Because your first risk to reward was not 1:3. So these 3 things, these 3 things, these 3 options we saw, and this is how we finished the crude example. So now quickly, if anybody is having any doubts, I will give you chance to unmute yourself and ask the questions, or you can put it in the chat box. So yeah, I'm unmuting Manish Kumar Prajapati. हाँ मनीष कुमार जी। Hi, can you hear me? Yes, I can hear you. Okay. So my question is about the last of the time we are talking about the confirmation candle and all, right? So sometimes while deciding the entry, we say that wait for the confirmation candle, and sometimes we say that when the breakout happens, just take the entry at the close of the breakout. So here, I mean, it's little bit get confused. I mean, is there any criteria to define whether we wait for confirmation or we just enter on the breakout? Okay, so confirmation candle, when you have to see, when let me use the chart to explain this. Okay, तो जब हम ये पॉइंट पे थे, let me delete everything here. Yeah,
आई वॉज एट दिस पॉइंट, दिस कैंडल, ओके। यहाँ पे मैं देख रही थी कि मेरे जो द प्राइस हैज कम इन द रेंज ऑफ माई सेकेंड सोल्जर, ठीक है, Right. राइट। एक सेकेंड, आई जस्ट मार्क द बाउंड्रीज, या सो माई प्राइस हैज कम इन दिस रेंज। पर ये ग्रीन कैंडल है, मुझे यहाँ पर कोई भी रिवर्सल नहीं मिला है, तो ये प्राइस यहाँ से ऊपर भी जा सकती है। In such a scenario, I have to wait for the next candle as a confirmation. Okay. Right. So my next candle shows me a red candle which has taken down all the 4 previous candles. So in this scenario, I will wait for a confirmation candle. But let's just say, I mean, in this scenario, ऐसा जब प्राइस है तब मैं confirmation के लिए रुकूंगी. When I will not wait for confirmation, जब मैं यहाँ पर हूँ suppose, and now I have to take a trade. Okay. Now this is telling me कि इसने पूरा range को break कर दिया है, and this is my weapon candle. So in this case, it is okay if I don't wait for a confirmation. यहाँ पे immediately I can take a trade, but not in this scenario. I hope that helps. A little confusion because let's say let's take some setup. Let's say for example double top or double bottom, right? So where you say that when you have a reversal pattern, let's say in a double top we have a evening star. Okay. So in the evening star, when the evening star is formed, shall I enter at the time of closing of the candle, or shall I wait for another confirmation to enter the trade? Yeah, 1 second, Titisha. Yeah. Hi, this is Rajesh. So, Manish Kumar, it actually depends on the type of trader you are. Okay, so some traders are very aggressive with their entries. So, acha, एक minute. Let me try to. Okay, Titisha, if you see on the crude oil, the chart that you are sharing currently. On the top left-hand side where you have CFD, right below the CFD, there is an evening star. Correct. Okay, if you could circle that. Yeah, just a minute. Rajesh, this is not a perfect evening star. Not the one. Scroll, move towards the right. A little more. ये क्या? हाँ. Okay, just a minute. Okay. Yeah, Rajesh. Yeah. So Manish Kumar, to explain you on when to wait for a follow-up, it actually, as I said, it actually depends on the type of trader you are. कुछ ट्रेडर्स बहुत एग्रेसिव होते हैं विद देयर एंड. ये एग्रेसिव मतलब जैसे ही उनको वेपन मिल गया तो वो तुरंत एंटर करेंगे. और कुछ ट्रेडर्स होते हैं जो कंजर्वेटिव है, थोड़ा प्ले सेफ खेलने की सोचते हैं. तो वो क्या करते हैं, वेपन मिला, अभी यहाँ पर हमने क्या ये ऊपर रेजिस्टेंस, अगर हम ट्रेंड लाइन बनाते हैं तो ये इवनिंग स्टार का जो हाई है ना, वहां पे एक रेजिस्टेंस आता है. okay. तो कुछ ट्रेडर्स जैसे ही ये इवनिंग स्टार दिखेंगे तुरंत शॉर्ट करेंगे एज सुन एज इवनिंग स्टार इज ओवर, क्लोज ऑफ द इवनिंग स्टार. ओके, क्योंकि नाउ द हाई ऑफ द इवनिंग स्टार एंड दिस ये जो रेड कैंडल का लो है द क्लोज. तितिक्षा, कुड यू मार्क अ हॉरिजॉन्टल लाइन? यस, ये जो रेड कलर का हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क किया है वहां पे वो तुरंत एंट्री ले लेंगे जैसे ही ये इवनिंग स्टार क्लोज हो चुका है. अब यहाँ पर ये मत देखो कि ये मंथली है, डेली है, 15 मिनट्स है, हम सिर्फ कैंडल्स देख रहे हैं. हाँ, तो एज सुन एज दे गेट दिस इवनिंग स्टार दे विल शॉर्ट. क्यों? क्योंकि नाउ दे नो वैल्यू ऑन द राइट हैंड साइड देखो तो इट इज 98.02 द क्लोज ऑफ, आई एम सॉरी 98.12 or something. Yeah. तो वहां पे एंटर करेंगे. एंड कुड यू टेक मी टू द हाई ऑफ दैट सेकंड कैंडल जो स्टॉप लॉस रहेगा? तो उसका हाई आप अगर स्क्रीन में देखोगे इट इज 106. Right.
ओके 106.09, तो 98 से 106 तक इज अबाउट 8 पॉइंट्स। राइट तो अब उनको स्टॉप लॉस मिल गया तो तुरंत, प्लस रेजिस्टेंस है प्लस इवनिंग स्टार है तो तुरंत शॉर्ट करेंगे, वो राइट हुआ एग्रेसिव एंट्री। अब राइट कुछ ट्रेडर्स है जो कंजर्वेटिव है, मतलब वो कंफर्म करेंगे यार ये इवनिंग स्टार कुछ फंसाने वाला तो नहीं है, इसका एक फॉलोअप के लिए वेट करते हैं। ओके तो उसके बाद अब ये फॉलोअप कैंडल आया, ओके अब ये फॉलोअप के बाद कुछ लोग एंट्री लेंगे। तो इफ यू So, चेक द, yes, go ahead. okay, so my question is, now you say follow-up candle. So what exactly is the criteria to define the follow-up candle? फॉलोअप कैंडल मतलब इवनिंग स्टार है तो आगे मोस्टली क्या होना चाहिए? Exactly, प्राइस but then how do you confirm that this follow-up candle confirms my evening star? नहीं नहीं, Okay, कंफर्म्स माय इवनिंग स्टार ऐसा कुछ नहीं है। इवनिंग स्टार के लिए हमें 3 कैंडल्स चाहिए, जहाँ correct. तीसरा कैंडल क्लोजेस एट और बिलो द मीडियन ऑफ द फर्स्ट कैंडल, Okay, विच इज हैपनिंग। okay, फॉलो अप मतलब वो इवनिंग स्टार को फॉलो अप, मतलब इवनिंग स्टार क्या है? एक बेरिश साइन है। बेरिश right, साइन के बाद क्या होना चाहिए? प्राइस और गिरनी चाहिए। तो right. उसके बाद वाली कैंडल ने प्राइस और नीचे लेकर गई है, हाँ Okay. लेकर गई है, तो दैट says that it there is a follow up to that evening star. तो नीचे लेकर गई है, it means that it closed below the previous low. Yes, you can say that. Okay, Okay. fine, that makes sense. Thank you. Yeah, and one setup where you need not wait for the follow up candle is a trend line का breakout या breakdown. Correct. Momentum kind of setup. Yes, as soon as the trend line is broken, you can immediately enter. Yeah, got the point. Yeah, thank you. Okay. Yeah, so some people are asking that when we enter after the follow-up candle, what will be my stop loss? So आपका जो stop loss है, that is not depending on the entry that you take. It depends on your chart. ठीक है, अगर आप नीचे एंट्री ले रहे हो इसका मतलब ये नहीं होता कि जहां पर आप एंट्री ले रहे हो आप उस पर्टिकुलर कैंडल के हाई को स्टॉप लॉस बना दो। आपको आपका जो वेपन कैंडल है, मतलब जैसे जो राजेश ने ये केस लिया था, तो यहाँ पर if I enter after the follow-up candle, then even at this point my stop loss will be here. I'm sorry, which is the high of this red candle. Okay, just because you entered here does not mean the stop loss will also change. So when we say that the stop loss is dependent on chart and not your entry, this is what I mean by that. And yeah, Nima had asked ki how did we take the entry price? So Nima, the entry price, which is this, was the low of the weapon candle. तो ये जो वेपन कैंडल था उसके ऊपर मैं अगर कर्सर ले जाती हूँ तो जस्ट चेक दीज पैरामीटर्स OHLC। तो यहाँ पे जो C लिखा है that is 4887, which is also my entry price for this example. So that is how I got the entry price 4887. I will take few more questions and then we'll move to the next example. Yeah, Kalpesh, go ahead. Yes. Hello. Yeah, Kalpesh. no, this example has been explained very well. If the next example, if we can have a quota, because in that there are few of the confusions. The stochastics are showing positive, but the Bapoki tuple is coming, so that is quite confusing. So how basically to solve those examples, if we can just explain Sure. really better. Okay, we'll take that example. Really been explained. Thank you. Okay, no problem. Yeah, so I just saw one question in the chat box saying, up to what max value of ADX should we remain in the trade? तो ADX के वैल्यू पे आपको ट्रेड में नहीं रहना है, आपके टारगेट्स के वैल्यू पे या आपके प्राइस एक्शन के बेसिस पे आपको ट्रेड में रहना है। तो यहाँ पे जब मेरा टारगेट 1 आता है at this point, so I can exit after my target 1. I should not check कि यहाँ पे ADX का वैल्यू कितना है for me to exit. So my exits, my entries, my stop loss, everything will be
based on my price action or my chart and not my indicators. Yeah. So कल्पेश आप बोल रहे थे कि कहाँ गया कोटक ये लास्ट वाला. I hope this is the one you were saying. Okay, so Kotak Bank, daily is my wave, weekly is my tide. Before that, Rajesh, are there any questions that need to be clarified before we move ahead? Rajesh? Yeah, I'm sorry. I was on mute and I was answering. So yeah, one of the queries was how to get into Ripple to refine your entry to better your stop loss. But I think if we have some time after the example, we can, explain that. Cool, chalega. So I will start with the next example if there are not any major questions. Okay, I think you're again mute and you're speaking. So I'll start with Kotak Mahindra and Kalpesh asked me. So I'll just unmute Kalpesh if you can help me through this example. Yeah, hi. Yeah, hi. So this example will go a little bit fast because we have only half an hour more. Yeah, very. Okay, so the Kotak example date is 15/7, as in 15 July 2014. So if Yeah. I go to Kotak chart. Yeah, my date was 15 July 2014. अच्छा एक सेकेंड क्या था 15 July 2014. July 2014 right 15 July yeah this date Yeah. okay यहाँ पे है हम so सबसे पहले हम क्या करेंगे कल्पेश मंथली पे जाएंगे और we will basically see the story of the Kotak Bank. So I'll go to monthly. Yeah. I'll go to this date again. Yeah. So what is my Kotak Bank story telling me? It's a trend in terms of since 2005 to 2014. It's a trend. Uptrend. Yeah. And on monthly, we have the Bollinger Bands challenged. Yeah, very much. All the EMAs, if we see, are in positive crossovers. Yeah. Right. So, what will be my view according to my monthly time frame? Monthly time frame. व्यू मतलब मेरा व्यू बुलिश होगा या मेरा व्यू बेरिश होगा योर वॉइस हाँ आपने क्या बोला व्यू हेलो कल्पेश bullish okay now we'll go to one time frame lower which is weekly which is also my tide तो हम tide पे क्या देखते हैं tide पे MACD तो मेरा ये पॉइंट पर MACD यहाँ पे so what is my MACD doing here positive right positive yeah so MACD is also telling me also giving me a buy signal. Right. So now I'll come down to one more time frame lower, which is my wave. So now when I come to wave, which is daily, and I go to this date again. Right.
So on this, okay, wait, on this date, ये डेट पे मुझे चेक करना है स्टोकेस्टिक जो क्या बता रहा है, Positive. Positive. Yeah. हाँ, positive. It's already in positive crossover since here, and now it is Yeah. giving a uptick or slope is up. And my RSI is also giving me a uptick. Right? So my double screen, Yeah. मतलब मेरे टाइड का MACD और मेरे वेव का स्टोकेस्टिक और RSI और मैंने मंथली पे जो डाउ थियरी के हिसाब से व्यू बिल्ड किया है, ये सारी चीजें मुझे बता रही है टू बाय और टू बी Buy. बुलिश. Yes. Okay. Titisha, one moment. ये सभी के लिए है. There was a query at the beginning of this webinar कि explain what is wave going against a tide. So this is a perfect example of that. Okay, cool, got it. So right, when we saw monthly, now what is wave going against the tide? जो हमने सीखा है कि जो भी हायर टाइम फ्रेम करता है हमें भी वही करना है. We should never go against our higher time frame. ठीक है, तो मेरा मंथली पे if I see at my example का point, which is this, monthly पे the price is going up and the Bollinger Band is challenged. This is challenged, right? Yeah. हाँ. उसके बाद when I come to one time frame नीचे, which is my weekly, वहां पे भी अगर मैं जब देखती हूँ, so again over here my Bollinger Bands, if I hide the price, is challenged. Yeah. यहाँ पर, right? Yeah. So मेरा monthly और मेरे weekly में my price is in the my price is going up. So my tide is going up. Okay. Yeah. पर जब डेली में आती हूँ, मतलब मैं जब वेव में आती हूँ, तब वेव में मेरा प्राइस, एक सेकेंड ना, या जब मैं वेव में आ रही हूँ तो वेव में मेरा प्राइस क्या कर रहा है? इट इज कमिंग डाउन, राइट? हाँ. सो मेरा जो मंथली और मेरा वीकली था वो मुझे अप ट्रेंड बता रहा था. उसमें मंथली में बॉलिंजर बैंड भी चैलेंज था, पर डेली में ये प्राइस जब नीचे आ रहा है, इट इज कमिंग डाउन एंड एट दिस पॉइंट इट मेड अ मॉर्निंग स्टार. और यही पे ये जो बॉलिंजर बैंड का भी शेप है वो भगवान के प्रसाद जैसा हो गया है. ओके, बट ऊपर से मैम दैट या भगवान का प्रसाद बिकॉज़ मीडियन से नीचे नीचे है. परफेक्ट. मैं EMAs हाइड कर देती हूँ. हाँ, तो ये यही बताता है कि दिस माय वेव इज गोइंग डाउन व्हिच इज अगेंस्ट माय टाइड व्हिच वाज गोइंग अप. या absolutely. So when my wave is going against my tide and नीचे आने के बाद जब ये Bollinger Band challenge, यहाँ तक it was challenged on the lower side. Yeah. But in this candle it failed the challenge and it made a Bapu ka prasad. Absolutely. It also gave me a morning star, which is a bullish reversal pattern. Yes. So when my wave is going against my tide, and then when it gives me a reversal over here, so this is a good point for me to go long. Okay. क्यों? क्योंकि मुझे एक लोअर वैल्यू मिलता है फॉर द प्राइस. ओके. जो सर बोलते हैं कि when your view is bullish, you should always buy the dips. Yes, absolutely. और जब व्यू है bearish, तब you should always sell the rallies. Yeah. तो buy the dips का क्या मतलब है? ये जो dip आई है यहाँ तक और यहाँ पे हमें ऐसा लग रहा है कि ये डाउन ट्रेंड एंड हो रहा है. So at this point we can buy. So this is basically called as buying the dips. Okay. Which also suggests wave going against tide. Yeah, absolutely. One question here, Diksha. In this example, we also identified there is a head and shoulder pattern, but definitely the wave and tide are positive, so we are not
went through Right. those So you parts. will not go. But head and shoulder pattern is also one of the confusion which is given in this example. सी हेड एंड शोल्डर का ब्रेकडाउन हुआ है क्या यहाँ पर कहीं पे भी? नहीं नहीं नहीं, हाँ. थोड़ा So थोड़ा. and plus, so when you saw your monthly and weekly, so what did that tell you? It's a buy signal. हाँ. And what is head and shoulder? It's a sell signal. So will you see a head and shoulder here? No, I'll not see. I'll not see. Right. Okay. ये ऐसा पैटर्न, see there are two type of head and shoulders, successful and failed. Okay. When a head and shoulder fails, this you will come to know in Elliott seminar कि ये fail कब होता है और क्यों होता है. Okay. यहाँ पे जैसे कि ये fail हुआ है, and there is a Yes. reason for it which you will understand in the Elliott seminar. Okay, okay. Because that only But got again- confused us because it's an uptrend and on the top there is a head and shoulder. So that's where the confusion has basically in mind whether the stochastic and MACD is giving a buy signal, but why head and shoulder is being formed here. So that's where the confusion was there. Okay, okay. So now is it clear? Yeah, very much, very much, very much. Right. So let me explain this Bhagwan Prasad. हाँ, Bhagwan का Prasad and once again. Right. So we saw the monthly, which was एक काम करती हूँ मैं. I will just do this for you guys so it's easier. Yep. So this was my monthly. This candle. Yeah. Okay. This candle was challenging the band on the upside. Absolutely. Actually, it's this candle. Huh. Yeah, it's this candle. So it is challenging the band on the upside. Matlab, mera higher time frame is up. Again, when on here only, when I see my weekly, yeah, so my weekly was also challenged on the upside. Over here, if I hide the price, you can see, sorry, if I hide the price, you can see that the Bollinger Band is challenged on the upside. Yes. ठीक है? Yes. ये दो चीजें हमने देखी. अभी हम देखेंगे, अभी हमने टाइड देखा, अब हम आएंगे वेव पे. तो मेरा मंथली ऊपर है, मेरा वीकली ऊपर है, यानी मेरा टाइड ऊपर है, पर मेरे वेव में ये प्राइस नीचे आ रही है यहाँ पर. Yes. 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 और यहाँ पे जो नीचे आ रही है प्राइस, तो ये पॉइंट पे उसने एक मॉर्निंग स्टार बनाया, और मॉर्निंग स्टार बनाते बनाते उसने जो बैंड है उसका शेप ऐसे कर दिया. प्रसाद, Prasad. भगवान का प्रसाद जैसे उसने शेप कर दिया. Yes. So this example is telling you that my wave is going against my tide, Tide. Yeah. and you have to take advantage of this. एक second. So how the split screen has been done? Who's messaging so much? TCS versus Kotak. Okay, calm down. We'll take TCS versus Kotak. Split screen यहाँ से किया कल्पेश. Select Okay. layout. Okay. Okay. There's a lot of layouts here, so you can select that. Right. So my wave was going in a direction जिसके opposite direction पे मेरा, sorry, my tide was going in a direction जिसके opposite direction पे मेरा wave जा रहा था, और मेरे यहाँ पर मुझे एक भगवान का प्रसाद मिला और एक morning star मिला, which is telling me that the trend might reverse from here. So I will buy here. Yes. 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 Right? Absolutely. Diksha, wait, क्या हुआ? What is the issue, Rajesh? No, On this the- is on Tata the- Consultancy you have- on the right. On the right. Okay. I'm so sorry, guys. So sorry. Rajesh, you should have told me, na? I was watching crude rate. Crude has fallen 200 points. Oh my god. Okay. Yeah, I'm sorry. I should have. Sorry, Mahesh. Right. So
Right, so my wave was going up. उधर भी सेम ही चीज हो रहा था जो यहाँ हो रहा है. So my wave is going up and my okay, wait, I'm distracted. Yeah, my tide is going up and my wave is coming down. So I am going to take advantage of the wave that goes against my tide. और यहाँ पे मुझे भगवान का प्रसाद मिला है. So this is where I will go long. Hello. Hello? Yeah. Yeah, okay. So I will again go back to the full screen. हाँ, तो हमने ये देखा. अभी I hope everybody is clear with what is wave going against the tide. Tide. If anybody is still not clear, quickly put it in the chat box. This is a classic example. Really, thanks. There is one more. ठीक है, nobody is saying no, so I'm going to go ahead. अभी ये पॉइंट पे चार्ट पे इस पे जाते हैं. So I was taking, क्या ले रहे थे हम? कोटक बैंक ले रहे थे. Kotak Bank, 14th कोटक. July 2014. 15 July 2014. July 2014. Kotak. And my close of the day was 149. 435. 435. 435. So I will write 435 over here. Okay. My next is Asta Papa story जो हमने बनाया bullish. Long. और buy long. Yeah. आस्था ट्रेड सेटअप. तो अभी इसमें सेटअप कौन सा है देखते हैं. आपको कौन सा सेटअप लग रहा है कल्पेश जी? सेटअप में डबल बॉटम नहीं. Double bottom. You can call it a double bottom. Yeah, absolutely. Okay. So if I mark a line over here, considering the wicks. Yeah. So this black line, यहाँ पर price मेरी गिरी, it halted here, it again bounced. Yeah. And then when it came back, it reversed from the same point. Yeah. So this is your double bottom. Yes. So in my Astha Papa trade setup, I will write double bottom. Yeah. Okay. Volume. Now I will check volume. So my volume is okay. It is not so good. So I will just write, yeah, below average. I'm going a little fast, Kalpesh. अगर मैं आपको लग रहा ठीक है ना? Yeah. Now we'll check Bollinger Band status. So what is my Bollinger Band giving me? I'll hide the price and I'll hide the volume. BKP. Yeah. अभी BKP. Yeah. अभी हमने क्या थोड़ी देर पहले देखा कि if my price is in the lower half of the Bollinger Band, मतलब median के नीचे है, तो ही मैं इसको BKP consider करूंगी. So Yes. is my price in the lower half? Yes, very much. And it is giving a BKP. Bhagwan Bhagwan ka ka Prasad. prasad. Yes. Right. So I will write Bollinger Band is giving me BKP. BKP. Next is ADX. Yeah. Okay, अभी हम ADX we'll check first. Where did the ADX go? Yeah, over here. So ADX is giving me a down tick. Down tick. Yes. तो हमारा उंगली सेटअप हमें क्या कहता है कि जब बॉलिंजर बैंड्स है वो चैलेंज्ड है. Yeah. और अगर मेरा ADX उंगली का शेप कर रहा है, then that is called a उंगली सेटअप. यहाँ पे is my Bollinger Band challenged? No, not yet. Of the sides it is challenged, right? No. So in this case, I will not check ADX. Did you understand why we ignored ADX? Very much, because it's not challenged. So that's the reason. Not we are- challenged. Yeah. So we have Perfect, to see the divergence here. Yes, we have to. So first we'll ADX में we'll fill the value of ADX if required. It is 15. 15. Yeah. So I'll put 15 over here.
EMAs. Do we check EMAs for double bottom? No. No. So I will write not applicable. Yeah. Okay. Next is divergences. So Yeah. I go back to Divergences the we have to chart. see. We have to see. Yeah. Now my price is making around equal lows. Yes. And at the same point, my RSI, my stochastic is uptick. making a higher low. Higher low. हाँ तो मेरा चार्ट पे here my lows are equal. और अगर अब विक भी कंसिडर करते हैं हम तो ये ऐसा हो गया. ठीक है, it is making a lower low or almost equal low, but my stochastic is making a higher low. So what will we call this? It's a bullish divergence. Perfect, great, Kalpesh. So I will write but bullish. we can say the RSI also, no? In this. Yeah, we can absolutely. Okay. RSI भी देख लेते हैं. Yeah, so RSI is not giving me any divergences. Yeah. Here stochastic कोई भी एक indicator देता है, then it is still fine. Sometimes it may say happen कि तीनों भी indicators या दोनों भी indicators दे रहे हैं divergence. Okay. But in this case stochastic RSI नहीं दे रहा है. So we'll write here bullish divergences in stochastic. ठीक है? Yeah. Next is Asta double screen. So what did my double screen tell me? Buy. Perfect. Targets. हाँ. So double bottom में हम targets कैसे निकालते हैं? D1, D2. Yeah. We see the price depth. Yeah. ये depth. Yeah. So my first target will be this. My second target, I'm considering this resistance as my second target. Yeah. So this is my T2. Abhi we'll quickly fill the values. My T1 is 450. Yeah, and T2 is my T2 is 485. Yeah. So my T1 450 and T2 is कितना था कल्पेश? 485. Great. Stop loss. What will be my stop loss? Stop loss with the close of the earlier candle. Just a minute, Kalpesh. Manish ji पूछ रहे हैं why EMAs are not required to check in this case. अच्छा, तो हमने जब SMM के एग्जाम्पल सॉल्व किए तो हमने SMM में EMAs जहाँ पे लिखे थे, कहाँ लिखा है EMAs? मूविंग एवरेज EMAs. तो इसके नीचे ही क्या लिखा है? इग्नोर इफ मॉर्निंग और इवनिंग स्टार, इग्नोर इफ डबल बॉटम, डबल टॉप और डबल बॉटम. ये तो इसीलिए हमारे चार्ट पे वी हैड अ मॉर्निंग स्टार, वी ऑल्सो हैड अ डबल बॉटम जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है. ये इसलिए हमने EMAs को इग्नोर किया. आई होप दैट इज क्लियर मनीष जी. Great. So stop loss, everybody is saying 428. Why is 428 your stop loss? Low of the earlier candle. Low of the earlier candle. Yeah. Okay. So we'll take 428 as stop loss. 428. Right. Abhi reward. So what will be my first reward? It will be my, since we are bulls here. Yeah. So it will be my minimum target minus price minus the cost, the entry price. Correct. So this will be equal to 450 minus my entry price, which is this. So it is 15. That is my minimum reward. Yes. And my maximum reward is my second target, which is 485 minus my entry price.
So it is 50. 50 rupees. Yeah. Okay. Now what is my risk? How do I calculate my risk? यहाँ पे we are bulls. Yeah. So for bulls, my risk is entry minus stop loss. Minus the stop loss. So this will be equal to entry 435 minus my stop 420. loss, which Yeah. is this 7 rupees. 7 rupees. तो अभी मुझे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो निकालना है. सबसे पहले my first risk to reward will be my first reward, which is 15 divided by my risk, which is 7. 7. This is 2, 1:2. Which is not favorable in terms of. Correct. And my second RR is 50 my divided by maximum target divided by my 7. risk, which is 7. 7. So this is 1:7. 1:7. Okay. हाँ, तो ऐसे केस में ओके, किसी का तो वीडियो राइट. अभी ऐसे केस में जब हमने कहा कि माय फर्स्ट आरआर इज नॉट फिटिंग इन 1:3, Yeah. तो ऐसे केसेस में हमारे पास 3 ऑप्शंस होते हैं. व्हाट आर द 3 ऑप्शंस? Either we can enter at after that 3 options. हाँ, see, the first option is don't take this trade. Yeah. Second option is make your entries better. मतलब क्या, आप एंट्री स्टॉप लॉस के नजदीक लेने की कोशिश करो. Okay. Okay. And third option is you can take the trade because your second RR is 1:4, but keep a very strict stop loss. Okay. Okay, these are your 3 options. Okay. So next it has given your first target, and then Yes. gradually the second target as well. Almost the second target. Yeah. अच्छा, अभी मैसेज में मोहम्मद जी Almost बोल the- रहे हैं Yes. कि टारगेट्स कैसे निकाला. तो टारगेट्स, सबसे पहले टारगेट तो हमारा ये जो डबल बॉटम था, ये डबल बॉटम था, तो उसको मैंने आई मेजर्ड द हाइट ऑफ दिस डबल बॉटम, एंड माय फर्स्ट टारगेट इज एट द अगेन एट दिस पॉइंट, विच इज माय डी. ठीक है. सेकंड टारगेट मैंने निकाला जो ये लगाया है, दैट इज माय प्रीवियस रेजिस्टेंस, ये पॉइंट. एक सेकेंड, मैं ये मार्क कर देती हूँ. या दिस पॉइंट वाज माय प्रीवियस रेजिस्टेंस. तो मैंने ये पॉइंट पे एक लाइन मार्क की जो मैंने सेकंड टारगेट कंसीडर किया. ठीक है, ये 2 टारगेट्स मिले मुझे. उसके बाद मुझे मिला मेरा रिवॉर्ड. तो मेरा मिनिमम रिवॉर्ड क्या होगा, सिंस वी आर अ बुल हियर, तो यहाँ लिखा है फॉर बुल्स टारगेट मिनिमम माइनस एंट्री. तो यहाँ पे हमने किया इज इक्वल टू मिनिमम टारगेट क्या था हमारा 450, ये देखो T1, तो माइनस एंट्री प्राइस जो कि है ये 435. ठीक है, तो इससे हमें मिला पहला रिवॉर्ड विच इज रिवॉर्ड मिनिमम. और दूसरा रिवॉर्ड कैसे मिला, हमने मैक्सिमम टारगेट लिया विच इज 485. सो आई टुक 485 minus my entry price, which is 435. So this is how I got my second reward, which is my maximum reward. Yeah, I hope that helps. Yeah, Kalpesh, do you have any doubts in this question? No, absolutely clear, Diksha. Thank you very much. Clear? Yeah, very much. I think Great. these So you examples- understood Tapli and Prashad, right? Yeah, absolutely, very clear. Great. Thank you, Kalpesh. Thank you very much. So now, welcome, Kalpesh. Now, if we have any doubts, then we can take it. I see a lot of hands raised, so I'm going to unmute. Hands raised. Yeah, please. So the first is Sai Tenala. Yeah. Sai, I have unmuted you. You may ask your query.
Okay, I don't hear any voice there, so I'm unmuting Anand Tirth Kulkarni. Yes. Yeah, I have no queries, sir. I have understood well. Thank you, Anand. Yeah, thank you. Okay, cool. Yeah. See, anybody not having queries can lower their hands. अच्छा, मैं क्या करता हूँ, मैं सभी के हैंड्स को लो कर देता हूँ, और किसी को कोई क्वेरी है, you may तो वो रेज कर सकते हैं. yeah, absolutely. Meanwhile, I will just brief जो अभी एग्जांपल हमने लिया, तो वो पूरा एक बार देख लेते हैं. So सबसे पहले हमने we understood the concept of wave going against the tide. करेक्ट. तो ये मेरा वेव ऊपर जा रहा था, इट वाज एन अप ट्रेंड. अच्छा, सबसे पहले तो हमने मंथली पे ट्रेंड देखा एंड इट वाज एन अप ट्रेंड एंड द बॉलिंजर बैंड्स वर चैलेंज्ड ऑन द अपसाइड. सो वी मेड अ डिसीजन टू बाय. Second step, we came to weekly. We saw that again it is in the uptrend and MACD is also giving you positive signals. We understood the concept of wave going against the tide. So this tide was going up, which is weekly. This tide was